Students, in this lecture we will discuss features of next group of plant kingdom, and that is Pteridophyta. In last lectures we have learned about Thallophyta and Bryophyta, and we know that these two groups are of non-vascular plants, means they lack xylem and phloem, the water and food conducting tissues. Now let's study what are unique features of this Pteridophyta and what is speciality of these pteridophytes that make them different from that of bryophytes or the thallophytes. Before discussing the features of these pteridophytes, one thing we have to keep in mind that in bryophytes also I have told you that in life cycle of bryophytes there are two types of life forms. मतलब एक प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल जब चलती है एक प्लांट में, ब्रायोफाइट्स में आपको बताया गया था कि इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स. वन इज द गैमेटोफाइट स्टेज एंड अनदर इज स्पोरोफाइट स्टेज. गैमेटोफाइट इज ए प्लांट बॉडी विच विल प्रोड्यूस गैमीट्स, गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट जिसको आप कह सकते हो, और उसी प्लांट की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट बनने के बाद एक और प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट. Sporophyte is a spore producing plant. Means in a single plant's life there are two types of plant bodies. One is sporophyte and another is gametophyte. Function of sporophyte is to produce spores and gametophyte function is to produce gametes. And both these two generations, both these two plant bodies, they are going to follow each other. If there is sporophyte stage, it will be followed by the gametophyte, and when gametophyte stage arrives, then it will be followed by the sporophyte stage. This is how the life cycle continue. In case of pteridophytes also the same thing is there, means their life cycle can be divided into sporophyte and gametophyte stage. हम ये समझ लें कि इनकी लाइफ साइकिल में भी दो तरह के प्लांट बॉडीज बनने वाली हैं. एक को आप स्पोरोफाइट कहेंगे, एक को आप गैमेटोफाइट कहेंगे. वेरी फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोट अबाउट दिस pteridophytes इज दैट दे आर वस्कुलर प्लांट्स, मींस दे आर हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम. आप याद कीजिए ब्रायोफाइट्स में आपको ये कहा था कि उनके पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. We can't say that they have leaf, stem or root. Why? Because they lack xylem and phloem. लेकिन यहाँ जैसे आपको कहा कि इन प्लांट्स के पास xylem और phloem tissues हैं. They have developed xylem and phloem conducting tissues. That's why their leaf are true leaf, roots are true roots, and the stem is true stem. They don't have leaf-like, root-like or stem-like structures. They have true leaf, stem and root. तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी बनाई गई है ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है. मतलब ये एक ऐसा प्लांट बॉडी है जिसका काम है स्पोर्स प्रोड्यूस करना. इस प्लांट को आप देखिएगा, इसमें आपको ये लीफ दिखाई दे रही है, या ये पूरी एक एक्चुअली ये लीफ को रिप्रेजेंट करता है. ये इसके लीफलेट्स हैं. ओके, एंड यू कैन सी द मिड लीफ हियर, यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम है, एंड दिस इज ए ट्रू लीफ. बिल्कुल इसके नीचे आप देखिएगा जो बिल्कुल सॉइल के अंडरग्राउंड, देयर इज अंडरग्राउंड स्टेम इन दिस स्पोरोफाइट, एंड दिस अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन एज राइजोम. दिस इज आल्सो ए ट्रू स्टेम. एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये रूट्स दिखाई दे रही हैं, सो बिलो द सरफेस ऑफ सॉइल, एंड दीज आर अगेन द ट्रू रूट्स. So this is sporophyte body which is differentiated into true leaf, stem and roots. Okay, this point has to be noted that they are vascular plants, first vascular plants of the land, and their body is having leaf, stem and root. Now this sporophyte body is the dominating plant form. ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट बना था वो बहुत कम टाइम के लिए बना था, तो उसको हम डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते थे वहां पर. लेकिन यहाँ इनकी स्पेशलिटी टेरिडोफाइट्स की ये है कि इनमें जो ये प्लांट बॉडी दिखाई देती है जिसको आप स्पोरोफाइट कह रहे हैं, ये एक डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है. मींस इट इज हैविंग
longer लाइफ स्पान। किससे कंपैरिजन चल रहा है? विद दैट ऑफ गैमेटोफाइट। अगर गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में कंपैरिजन करेंगे तो स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स का ज्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है, इसकी लाइफ स्पान ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी। सेकंड थिंग, यू कैन नोट दैट इट इज हैविंग लीव्स, दैट मीन इट इज फ्री लिविंग। ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है। डोमिनेंट हुआ, फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट कह सकते हो। तीसरे जो आप इसके बारे में इसका फीचर जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे स्पोरोफाइट कह रहे हैं, तो दिस स्पोरोफाइट इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर्स। इसका जो फंक्शन है स्पोर्स बनाना है। नाउ वेयर द स्पोर्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे जो यूनिक फीचर्स इन प्लांट्स की हैं, आपको ये लीफलेट्स दिखाई देती हैं। फ्रंट आप कह सकते हो या लीफलेट्स कह सकते हैं। ये जो लीफ है इसका वेंट्रल साइड मीन्स द लोअर साइड ऑफ दिस लीफ, here you will find such dots, ऐसे आपको ब्राउन डॉट्स इसके ऊपर नजर आती हैं। वैसे यहाँ पर जब भी वेजिटेटिव ग्रोथ जब इसकी चल रही है तब ये जो लीव्स हैं दे आर एक्टिंग एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज का टाइम आता है उस वक्त इन्हीं लीव्स के ऊपर ऐसे कुछ ब्राउन स्पॉट्स अपीयर होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड। नाउ व्हाट दिस ब्राउन स्पॉट्स आर, ये ब्राउन स्पॉट्स इनको आप एक सिंगल स्पॉट को आप कहते हो सोरस, और बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस लीफ पर, तो इनको हम कहते हैं सोरी, SORI, सोरी। सो दिस सोराई और दिस सोरस, सिंगुलर सोरस इज देयर, दिस सोरस इज हैविंग ए नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया और सिंगुलर अगर आप बोले तो उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंटेनर्स जिनमें स्पोर्स प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ, सपोज ये एक आपको सोरस दिखाया गया, इस सोरस में बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं, these are sporangia and one of the sporangia I have shown here by enlarging it। ये एक स्पोरेंजिया दिखाया गया है, स्पोरेंजियम दिखाया गया है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पोरेंजियम हर इस डॉट के अंदर हैं जिसको आप सोरस कहते हैं। अब क्योंकि इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनने वाले हैं, these are spore producing structures, इसीलिए ये जो लीफ है यूनिक लीफ which is having these spore producing structures, these leaves are known as sporophylls। फिल जब आप वर्ड यूज करते हो उसका मतलब है लीफ, और उसके सामने आपने स्पोरो लगा दिया, इसका मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। सो दिस इज ए स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। ये वही लीव्स हैं, अभी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, लेकिन अब जब रिप्रोडक्टिव फेज की बारी आती है देन दे आल्सो गोइंग टू एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस स्पोर्स। अब ये सोराई, a number of a group of sorus is known as sorai। this sorai are having the sporangia, बहुत सारे स्पोरेंजिया, और हर स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रोडक्शन होने वाली है। स्पोर्स, the thick walled structures will be produced in each sporangium। ये जो प्लांट बॉडी है ये डिप्लॉयड है, this is a diploid। sporophyte is a green, it is dominating and diploid structure। लेकिन जब स्पोर प्रोडक्शन होता है तो वो स्पोर प्रोडक्शन मियोसिस प्रोसेस से होगा, and this meiosis will lead to production of 4 spores, haploid spores from each cell of the sporangium, and that's why the spores are haploid in nature। clear? haploid in nature। One unique thing about these sporophytes is that, जैसे अभी यहाँ पर हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, ये जो प्लांट बनाया गया है इसको आप ये एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे इसके अंदर ये फर्न प्लांट है, ए टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा, या जिसको आप ड्रायोटेरिस कह सकते हो, या टेरिस प्लांट है, इसका एग्जांपल दे सकते हैं फर्न्स में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे इक्विसिटम, this equisetum and silaginella, they have these leaves arranged in groups, specialized group, they get
फॉर्म स्ट्रोबिलस। आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ प्लांट्स में आपको इस तरह की लीव्स नहीं नजर आती हैं। जब रिप्रोडक्टिव सीजन या जब स्पोर प्रोडक्शन का टाइम आता है, तब जैसे सिलाजिनेला या इक्विसिडम में यही वाली जो लीव्स होती हैं ये फोल्ड होकर और कुछ इस तरह का यूनिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज नोन एज स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस, what is a strobilus? It is a structure which is formed by a number of sporophylls। ऐसे बहुत सारी लीफ फोल्ड होकर इन्होंने कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज करके एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको आप स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक लीफ बहुत सारे स्पोरेंजिया, इसके हर स्पोर्ट में बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं, उसी तरीके से क्योंकि स्ट्रोबिलस भी उसमें भी स्पोरोफिल्स हैं, तो इसका मतलब स्ट्रोबिलस में भी बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं और हर एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफाइट will produce unique type of specialized type of leaf sporophylls। These sporophylls bear areas which are known as sori, and each sori has a number of sporangium or sporangia, and each container sporangium has a number of haploid spores produced by meiosis। तो यहाँ तक इस स्ट्रक्चर का जो फंक्शन था स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का पूरा होता है कि वो स्पोर्स प्रोडक्शन करता है। स्पोर्स के बारे में एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि बहुत सारे टेरिडोफाइट्स या मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस होमोस्पोर्स। होमो का मतलब होता है सिमिलर। Homosporous pteridophytes are those pteridophytes which produce spores of same size। एक जैसे साइज के स्पोर्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे होमोस्पोरस प्लांट बॉडी कहते हैं। और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं इन्हीं प्लांट ग्रुप के अंदर जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब जिनके अंदर दो तरह के स्पोर्स प्रोडक्शन होती है। एक जो लार्ज साइज के स्पोर्स होते हैं जिसको आप मेगास्पोर्स कहते हैं, और दूसरे उसी प्लांट बॉडी में ऐसे स्पोर्स प्रोडक्शन होती हैं जो छोटे साइज के होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जिन्हें कहा जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सम स्पीशीज, मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। मैक्रोस्पोर्स आर लार्ज साइज स्पोर्स and microspores are small size spores, and when we can give examples of these heterosporous species, heterosporous means which are going to produce two different types of spores, and examples of heterosporous species are Silaginella and Salvinia। सपोज ये बड़े साइज का स्पोर दिखाया है और यहाँ पे ये स्मॉल साइज का स्पोर। तो सिलाजिनेला और साल्विनिया एग्जांपल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं जिनमें हेट्रोस्पोरी नोट की जाती है, मींस दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ओके, तो यहाँ तक ये इतनी फेज है, इसको आप स्पोरोफाइट स्टेज कह सकते हो। ये मेन प्लांट बॉडी, डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी, इस पे खास तरह की लीव्स लगी, उन लीव्स की अरेंजमेंट चाहे तो इस बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, फ्री लीव्स रहती हैं, या दे कैन गेट कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म दिस स्ट्रोबिलस। कोई भी केस हो, चाहे इस तरह की लीव्स हो चाहे स्ट्रोबिलस की फॉर्म में हो, उनके अंदर कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, कंटेनर्स डेवलप होते हैं जिसको आप स्पोरेंजिया कहते हैं। हर स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्मॉल साइज स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और क्योंकि ये पूरी बॉडी स्ट्रोबिलस लीव्स एवरीथिंग इज डिप्लॉयड इन नेचर हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन जब स्पोर्स बनने की बारी आती है दैट विल बी टेक प्लेस, that has to be take place by the process of meiosis, means जितने भी spores बनेंगे वो सभी के सभी haploid होते हैं, and these spores can be homosporous type or heterosporous type, means they can be of same size, that then we will call them these are homospores, and we can also call them heterospores if they are of different sizes, megaspores and microspores। यहाँ तक जब स्पोरोफाइट फेज पूरी हो चुकी है, अब ये जो स्पोर हमारे पास है, स्पोर कैसा है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर है और हैप्लोइड है। इट इज हैप्लोइड बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, इट इज थिक वॉल्ड एंड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। नाउ दिस थिक वॉल्ड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर विल germinate on the moist soil।
germinating spore is going to produce another plant body which is known as the gametophytic plant body. आप यहाँ देखिए, मैंने कहा था कि इनकी लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट बॉडीज बनते हैं। एक हम यहाँ देख चुके हैं जिसमें लीफ, स्टेम और रूट आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जब ये लाइफ साइकिल का ये वाला हिस्सा पूरा हो जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं, तो इन्हीं स्पोर से एक और नए टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक नए टाइप का प्लांट बॉडी डेवलप होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। This plant body is known as the prothallus. इस प्रोथैलस की खासियत ये है, सबसे पहले आपने ये देखा कि ये स्पोर्स कहाँ जर्मिनेट करेंगे, दे विल जर्मिनेट ऑन द डैम्प सॉइल, मॉइस्ट सॉइल सरफेस पर ये जर्मिनेट करके और ये प्लांट बॉडी बनाते हैं। ये प्लांट बॉडी जब बनती है तो इट इज फ्लैट एंड एप्रेस्ड ऑन द सॉइल सरफेस, इस तरह से अपने आप को एप्रेस करके रखती है। अभी जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको वेंट्रल साइड से दिखाया गया है। सपोज ये प्लांट बॉडी है, इसको आपको इस तरह से करके दिखाया गया है, वेंट्रल साइड आपको दिखाई जा रही है, लेकिन एक्चुअली दे आर एप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। इसकी खासियत क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी? सबसे पहली बात, क्योंकि ये स्पोर से जर्मिनेट किया है, स्पोर से डेवलपमेंट इसकी हुई है, तो क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड थे, ये पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड नेचर की है। सेकंड थिंग, ये ग्रीन है, मींस ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ये इस प्लांट बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, ना ये प्लांट बॉडी इस पर डिपेंड कर रही है, ना गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो इट इज हैप्लॉइड एंड ग्रीन स्ट्रक्चर, मल्टी सेलर बॉडी दिखाई देती है आपको। थर्ड थिंग अबाउट दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज दैट वी आर कॉलिंग इट गैमेटोफाइट। प्रोथैलस कहते हैं स्पोरोफाइट्स, इनके टेरिडोफाइट्स के केस में इनको प्रोथैलस कहा जाता है, लेकिन ये एक तरीके से गैमेटोफाइट है, यानी कि इसका फंक्शन क्या होगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमीट्स। इसका काम है मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करना। अब मेल एंड फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोडक्शन कहाँ होती है, आप ये देखो कि पूरी प्लांट बॉडी जो दिखाई गई है, इसमें मैंने कुछ स्पेशल एरिया दिखाए हैं यहाँ पर, और ये प्लांट बॉडी जो है, इसके जो ये, क्योंकि मैंने वेंट्रल सरफेस आपको दिखाया है यानी नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको ये रूट जैसे स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ खास स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये राइजोइड्स हैं, आप इन्हें रूट नहीं कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम कह रहे थे कि टेरिडोफाइट्स मस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके पास ट्रू लीफ, स्टेम और रूट है, क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो गया है। लेकिन इसी प्लांट बॉडी के अंदर, मींस इसी टेरिडोफाइट के अंदर, जब स्पोरोफाइट स्टेज पूरी हो जाती है, नेक्स्ट टाइप का प्लांट बॉडी बनता है, वो नॉन वस्कुलर होता है, मींस इट इज नॉट हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। इसीलिए बहुत छोटे साइज के हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, इनसे इनके कंपैरिजन में इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉलर इन साइज, एप्रेस्ड ऑन द सॉइल सरफेस, and they are bearing root like structures. They are not true roots because they are not having xylem and phloem. That's why we are calling them rhizoids. अब ये rhizoids कहाँ है, नीचे वेंट्रल सरफेस पे लगे, और इसी वेंट्रल सरफेस को जब आप अच्छे से देखना चाहो तो इस पे आपको यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स भी दिखाई देंगे। हमने कहा कि गैमेटोफाइट है तो ये गैमेट बनाएगा, और गैमेट कहाँ पे बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड sex organs known as archegonium and antheridium. अब ये थोड़ा सा डिटेल में हमने यहाँ दिखाया है। दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथ्रीडिया, सिंगुलर आप एंथ्रीडियम कहते हो। तो सपोज मैंने एक एंथ्रीडियम दिखाया है, इस एंथ्रीडियम के अंदर ये जो स्पेशल रेड एरिया दिखाया गया है, इससे मेल गैमेट बनेंगे इन सेल्स से। और इसी तरीके से दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको आप आर्चिगोनियम कह रहे हैं। इसकी शेप फ्लास्क जैसी है, और बिल्कुल इसके बेस पर यहाँ पर एक सेल है, एनलार्ज सेल है, जिसको आप एग कहते हो। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। वेयर आर दे प्रेजेंट? They are present on the ventral side of this prothallus, non-vascular stage of the pteridophytes. जब ये यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो इनमें गैमेट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे तो गैमेट दिखाया भी गया है, एग या इसको oosphere कह सकते हो।
एंथीरियम के अंदर इस तरह के गैमेट्स बनते हैं जो फ्लैजिलेटेड हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड दीज आर नोन एज एंथीरोजोइट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भी, जो ब्रायोफाइट्स जैसा है, जो फीचरिंग हुआ ब्रायोफाइट से मैच करता है। आपको मालूम है ब्रायोफाइट्स दे कांट ग्रो without water because they have to be nearby the water areas because for fertilization process they require water. Same thing is here. ये एंथीरोजोइट्स जो इस प्रोथैलस के इस एंथीरियम पोर्शन में लगा है, it can't reach in this flask like structure. ये इसमें पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमें फिर वही बात कहनी है कि they require water. Presence of water is must for the fertilization process. एंथीरोजोइड को एक मीडियम चाहिए तैरने के लिए. It need water as medium to float and to reach nearby this egg. एंथीरोजोइड जब इस एग के पास पहुंचेगा तो उसके लिए वाटर जरूरी है. इसीलिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश करवाने के लिए ये प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ मींस दिस प्रोथैलस बॉडी कैन ग्रो ओनली इन द मॉइस्ट एरिया. अगर यहाँ पर ये मॉइस्ट एरिया नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसके आगे की जो स्टेजेस हैं वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बिना वाटर के नहीं हो सकता. ये फीचर भी इन्हें एक तरीके से एम्फीबियंस की ही फॉर्म देता है. जैसे आपने कहा था ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट वर्ल्ड बिकॉज दे नीड वाटर एंड लैंड फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल. In the same way, the pteridophytes are also dependent on the water for completion of their life cycle. So जो ये प्रोथैलस है, गैमेटोफिटिक बॉडी है, it will produce the two types of sex organs and these sex organs will produce the gametes, egg and the antherozoids. Antherozoids will reach up to this egg with the help of water and then fertilization will take place. और जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो ये जो फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर जिसको आप अभी एग कहते हो, इसी आर्चिगोनियम के अंदर इस एग को अब आप क्या कहोगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसको आप जाइगोट कहेंगे. और जाइगोट की जो प्लॉइडी होता है वो डिप्लॉइड होती है. डिप्लॉइड क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम का सेट मेल गैमेट से मिला है इससे, और एक सेट जो था एग का है. तो वन ऑफ the set is from egg and one set is from the antherozoid. So two sets of chromosome are there, that's why the zygote is diploid in nature. अब यहाँ तक आने के बाद एक बार प्रोथैलस के फिर से फीचर्स हम बात कर लें. ये ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है, स्मॉल साइज के होते हैं, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर सेक्स ऑर्गन्स इनके ऊपर लगते हैं, एंड दे आर नॉन मस्कुलर बॉडीज. एंड व्हाट इज द फ्लूइडी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये कहाँ से डेवलप हुआ था, स्पोर से डेवलप हुआ था, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल बनी जिसको आप जाइगोट कहते हैं, और इस जाइगोट से अब फिर से ये प्लांट बॉडी जिसको आप स्पोरोफाइट कहते हैं ये डेवलप होती है. तो ये पूरी एक लाइफ साइकिल है. इस लाइफ साइकिल को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. यहाँ तक स्पोरोफाइट स्टेज तक स्पोर प्रोडक्शन हुई, और गैमेटोफाइट स्टेज जब चलती है तो उसका काम होता है गैमेट बना के जाइगोट तक बनाना. ये गैमेटोफिटिक स्टेज चल रही है, ये स्पोरोफिटिक स्टेज चल रही है. स्पोरोफिटिक स्टेज डिप्लॉइड नेचर की है जब तक के स्पोर्स नहीं बनते, और जो गैमेटोफिटिक स्टेज है जाइगोट बनने से पहले तक यहाँ तक ये सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड नेचर के हैं. दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. Haploid stage is followed by diploid stage, diploid stage is followed by then haploid stage. इस तरीके से चलता रहता है. लेकिन डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, मतलब ड्यूरेशन इस स्ट्रक्चर की ज्यादा टाइम तक की है. ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स पे लगते हैं, उसके बाद जाइगोट बनने के बाद ये डीजनरेट कर जाता है. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है पहले वेजिटेटिवली ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद में इसने स्पोर प्रोडक्शन शुरू करना है. तो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. अब कुछ यूनिक फीचर्स जो इनके बारे में और हम नोट कर सकते हैं वो ये कि इन प्लांट्स की जो लोकेशन है, अगर आपसे बात की जाए कि क्या ये दूसरे प्लांट्स की तरह से कोई ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक खास एरिया में ही लग पाते हैं, मीन्स इज देयर
is restricted or not? Yes, it is restricted. Why it is restricted? Because their gametophytic phase is totally dependent on water. ये ड्राई एरिया में ये वाला प्लांट बॉडी ये बेशक ग्रो कर सकता है, लेकिन उसके बाद अगर इसे लाइफ साइकिल का ये हिस्सा लेना है, इट हैज टू बी नियर द वाटर, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए एक्वेटिक मीडियम की या मॉइस्ट एरिया की जरूरत पड़ती है. सो दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लैंड सरफेस, but yes, they are restricted to specialized areas where enough moisture is present. स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बॉडी दोनों ही इंडिपेंडेंट है. ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट बॉडी. वो वहां पर एक पैरासिटिक प्लांट की तरह से काम करता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स वस्कुलर प्लांट्स हैं, सीडलेस प्लांट्स हैं. सीड्स यहाँ पे हमने कोई बात नहीं की है, लेकिन अब अगले जो ग्रुप्स आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि सीड फॉर्मेशन होती है. यहाँ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि सीड फॉर्मेशन की जो शुरुआत है या स्टेप्स हैं वो कहीं ना कहीं इन प्लांट से लिंक्ड है. जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमने पढ़ा था कि there are a few species which are going to produce two types of spores, megaspores and microspores. अगर megaspores हैं तो they will germinate a prothallus which will bear only archegonia. ये बहुत यूनिक पॉइंट है यहाँ पर कि अगर प्लांट ने मेगास्पोर्स प्रोड्यूस किए हैं तो मेगास्पोर्स will germinate to form this gametophyte, जिस पर सिर्फ आर्चिगोनिया लगेंगे, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं. और अगर वो माइक्रोस्पोर्स हैं they will produce only the prothallus which will bear the male sex organs. ये एक यूनिक फीचर है जो सीड हैबिट को इंडिकेट करती है कि यहाँ से सीड फॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है, सीड फॉर्मेशन जैसी हैबिट की शुरुआत हो चुकी है. So production of two different types of spores. Second thing is, in many of the species, this gametophytic plant body is retained with that of sporophyte. कुछ टाइम के लिए गैमेटोफाइट, वैसे तो ये दोनों आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अभी बात की, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट प्लांट है, फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो इसको स्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहता. लेकिन जब एक प्रोसेस चल रही होती है, लाइफ साइकिल चल रही होती है, तो कुछ स्पीशीज के अंदर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जैसे जाइगोट बना है, ये स्ट्रक्चर है, तो इस फेज में स्पोरोफाइट जब बनना शुरू होगा इस प्लांट से, उस टाइम तक ये दोनों प्लांट बॉडीज आपस में एक साथ अटैच रहती है. गैमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज बोथ आर अटैच्ड टू ईच अदर. दिस इज आल्सो एन इंडिकेशन दैट सीड हैबिट इज गोइंग टू बी स्टार्ट. So this is the brief description of this pteridophytes. These pteridophytes can be classified as Psilopsida. 4 क्लासेस हैं जो आप मेंशन कर सकते हो. Psilopsida, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो Psilotum का. Second class is Lycopsida, in which you can give example of Selaginella and Lycopodium. Third class is Sphenopsida, in which we can give example of Equisetum, and Pteropsida, in which we can give examples of Dioteris, Pteris, and this fern. उनको आप फर्न के नाम से एक्चुअली जानते हो, तो इसीलिए ये कॉमनली ऐसे लीफी स्ट्रक्चर जिनके पास होते हैं हम फर्न कहते हैं. इन्हीं के कुछ मेंबर्स को होर्स टेल्स भी कहा जाता है.